शुरू कर। Good evening, everyone. Myself, Dr. Deepali Mehta. I am your host for today's session. I welcome you all on behalf of Good Night and Mind by Creative. This is wonderful series, Guru Ji के साथ गुरुवार. This is our 93rd session. This series is started by our beloved Guruji on 2nd June 2022. I am very happy to introduce today's speaker, Dr. Pranita Patil from Virar, Mumbai. Dr. Pranita has completed her BHMS from Virar Homeopathic Medical College and she is practicing since 10 years in Virar. She is the most responsible, sincere, and hardworking admin member of our creative family. She is handling all the WhatsApp groups and all the online courses run by creative. She got influenced by our beloved son and then started practice solely on mind method with marvelous results. Now, she pursuing her MD from Motiwala Medical College, Nashik. Now I welcome her and request her to share her knowledge with all of us on this platform. वेलकम प्रणीता मैडम, वेलकम। Thank you, Deepa Madam, for such a warm welcome. शुरू हो जाओ। Yes, sir. My heartfelt gratitude to our beloved Guruji, Dr. Liaquat Nawawi sir, for giving me this opportunity, believing in me, and giving me this opportunity to share whatever little I have learned from you. So thank you so much. So this session is really overwhelming because we are heading towards our 100th session and today is our 93rd session. So it is like mixed emotions. So today's topic is management of infertility. So why management of infertility? That in my practice, initially I used to feel, treating infertility, I used to feel a great challenge. But after coming into Mind Method, after joining MML, that is Mind Method by Dr. Liaquat Nawawi sir, so I found it very easy to prescribe medicine in case of infertility also, and I started getting results in infertility. But there are some constitutions who present with some different kinds of a set of symptoms in during pregnancy as well. So I feel the more than treating infertility, conceive hona, it's a one step, and another challenge is to treat patient during the pregnancy. And sir always tells the when patient comes to you for infertility, ask that patient to take treatment for total 9 months even after conceiving. So that is the biggest challenge to treat because we never know what kind of symptoms the patient will present. So this is one of the case where patient had gallstones, left-sided kidney stone, and 5 years of infertility, and she is 32 years female. So this patient was referred to me by my another patient, and that patient is her friend. So she came into clinic, she sat down and she started talking. Because when she came to me, she had acute left-sided abdominal pain. So she started saying me about her pain. So she said कि मुझे यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है और नौशिया हो रहा है। बोली कि मैंने मेरे फैमिली डॉक्टर से बात की थी तो उन्होंने यूएसजी करने के लिए बोला तो वहां पे समझा कि 4 mm का स्टोन है। तो शी सेड कि आई स्टार्टेड टेकिंग बार्ली वाटर और कुछ लीव्स शी स्टार्टेड ईटिंग। कोई पत्ते होते हैं जो किडनी स्टोन में खाते हैं शी सेड, तो शी स्टार्टेड ईटिंग दैट, बट फिर भी उसको रिलीफ नहीं मिला। फिर उसके फ्रेंड ने उसको बोला तो फिर वो यहाँ पे आई। मैंने उसको पूछा कि ड्यूरिंग पेन आपका मूड कैसे रहता है, तो उसने बोला कि पेन के बारे में
पेन को लेके मूड में कुछ चेंजेस नहीं होते हैं, बट मुझे ऑफिस का कुछ स्ट्रेस है, उसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मुझे स्ट्रेस होता है मेरा दर्द बढ़ता है। तो लेकिन दूसरा ये भी है कि हम लोग हॉलीडेज के लिए बाहर गए थे, तभी भी मुझे दर्द हुआ था। जब मैं शी इज अ टीचर, तो बोली मैं कॉलेज के लिए ट्रैवल करती हूँ, तो अ, बोली कि उस वक्त भी ऑटो में जैसे जॉब लगते हैं, रास्ते में खड्डे वगैरह होते हैं, तो उस वक्त भी मुझे पेन होता है। तो मुझे ऐसा भी सिर्फ स्ट्रेस के वक्त ही होता है ऐसा भी नहीं, मुझे अदरवाइज भी दर्द हुआ था। तो मैंने उसको पूछा कि क्या एग्जैक्टली स्ट्रेस है आपको, आप बता सकते हो तो मुझे मेडिसिन लेने में आसानी होगी। तो बोली कि एक्चुअली मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ और मैं साथ में मेरा पीएचडी भी कर रही हूँ। तो बोली कि कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से मेरा सैलरी नहीं बढ़ाया गया, और मेरे जूनियर्स है उनका सैलरी काफी बढ़ाया और उनको मेरे लेवल पे लाके रख दिया। तो उस बात का मुझे थोड़ा स्ट्रेस लगता है। और बोली कि ये जॉब जो है घर से नजदीक है, तो मैं छोड़ भी नहीं सकती क्योंकि मेरा पीएचडी भी चल रहा है, तो वो पढ़ाई के लिए वगैरह वक्त भी मिलता है। तो इस हिसाब से मतलब मैंने जॉब नहीं छोड़ा, मैं वहीं पे कंटिन्यू कर रही हूँ। बोली कि हेल्थ रिलेटेड मुझे स्ट्रेस लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे ही ऐसा क्यों होता है। तो बोली कि मैं बचपन में भी बीमार रहती थी फ्रिक्वेंटली। तो और बोले कि अभी ऐसा हुआ कि 2021 की बात कर रही थी वो, कि मैं फुटपाथ से चल रही थी और मेरी कोई भी गलती नहीं थी, बट एक लड़की ने आगे स्कूटी से मुझे टकराया और मेरा एक्सीडेंट हो गया। फिर मुझे सर्वाइकल रीजन में मार लगी और उसके बाद से मेरे को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया। फिर बोली मैरिज के 15 डेज के बाद मुझे निमोनिया भी हो गया था, और मतलब इतना ज्यादा मुझे तकलीफ हुई थी कि उस वक्त भी डॉक्टर ने टीबी का ट्रीटमेंट देके मुझे ठीक किया। उस वक्त मुझे टीबी का ट्रीटमेंट देना पड़ता था। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कि जहाँ पे भी मैं सेट होने की कोशिश करती हूँ वहां पे मेरे हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। बोले कि और एक्चुअली हम बेबी का भी प्लान कर रहे हैं। इनिशियली मेरे हस्बैंड बाहर होते थे काम की वजह से, बट अभी काफी टाइम से वो यहाँ पे है और हम लोग प्लान कर रहे हैं, बट कंसीव भी नहीं हो रहा है। तो इस चीज का भी बर्डन लगता है, लेकिन सारी चीजें पाइल अप हो जाती है। बोली कि एक्चुअली मेरे घर में ऐसा सिचुएशन है, मतलब बोली मेरे मायके में, कि मेरे पेरेंट्स और मैं हम तीनों ही हैं, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे है। और कंटिन्यू कुछ ना कुछ रहता है, जैसे कभी फादर का रहता है, मदर का रहता है, फिर कभी मेरा रहता है। तो बोली कि बचपन से मैं यही देखते आई हूँ तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आता है ये चीज का कि क्या चल रहा है। तो अभी बोली वैक्सीनेशन के बाद मेरे फादर को अंजाइना भी हुआ। पहले उनको ऐसी कुछ भी हार्ट रिलेटेड कंप्लेंट्स नहीं थे, बट वो वैक्सीनेशन के बाद अभी उनको ये भी कंप्लेंट आई। और बोली कि मैं जब छोटी थी तो मेरी मम्मी भी गिर गई थी। बोली जहाँ पे वो ऑफिस जाती थी, तो ऑफिस के बस का एक्सीडेंट हो गया था। तो वहां पे मेरी मम्मी का पूरा स्पाइन डैमेज हो गया, मतलब 2-3 वर्टिब्रास ही उसके ठीक है, अदरवाइज बाकी सारे वर्टिब्रास उसके डैमेज है। तो बोली वो कहीं भी किसी भी वक्त चक्कर आके गिर जाती है। तो बोली ये उस वक्त मैं बहुत छोटी थी उसी से। और बोली कि उसमें ये सैलरी का भी आता है, तो लगता है कि एक तो फैमिली के हेल्थ चैलेंजेस है, प्लस मेरा फर्दर एजुकेशन भी चल रहा है, और उसमें सैलरी भी नहीं बढ़ा के दे रहे। तो बोली कि मुझे अभी कंटाला आ रहा है कि ये सब और उसमें ऐसा भी है कि प्रेगनेंसी भी नहीं रह रही है। तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है।
फिर मैंने उसको पूछा कि फाइनेंशियली आपको कुछ स्ट्रेस लगता है क्या, तो बोली कि हाँ लगता है, क्योंकि अ, अभी हम लोग बोले ईस्ट से वेस्ट में शिफ्ट हो गए, नया घर लिया है, प्लस बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एजुकेशन चल रहा है, इसकी वजह से सेविंग्स नहीं हो पाती, और इसके बीच में कोई फैमिली मेंबर का या मेरा हेल्थ इश्यूज आता है, तो फिर मुझे स्ट्रेस होता है वो मैनेज करना। तो बोले क्योंकि मैंने बचपन से मैं यही देखते आ रही हूँ, कभी मम्मी का, कभी पापा का, कभी मेरा। तो बोली कि हमने वास्तु शास्त्र अनुसार 2-3 घर भी चेंज किए, बट उसका भी कुछ फायदा नहीं हुआ। तो मैंने उसको पूछा कि आप बिलीव करते हो क्या वास्तु शास्त्र पे, तो बोली कि नहीं, मैं बिलीव तो नहीं करती इतना, लेकिन जैसे रिलेटिव्स बोलते हैं कि इतना सब चल रहा है तो ये करके देखो, तो बोले कि हम लोगों ने मतलब वो भी किया, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। बोली कभी कभी लगता है कि मैं अकेली हूँ, किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती, कोई सिबलिंग्स भी नहीं है तो मैं उनके साथ भी शेयर नहीं कर सकती। और बोली मेरे फादर का इंटेस्टिनल म्यूकोजल लाइनिंग चली गई है, तो लास्ट 22 ईयर से वो बहुत फीका खाना खाते हैं, मतलब उसमें सिर्फ थोड़ा सा सॉल्ट और हल्दी रहती है। अगर उन्होंने कुछ भी ऑयली स्पाइसी या सार ऐसे कुछ भी खाया, तो तुरंत उनको लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं और उनको बहुत तकलीफ होती है। तो ये शिखर कि ये बोलने का मतलब ऐसा है कि कुछ ना कुछ मेडिकल कंडीशंस बचपन से ही चलते आ रहे हैं, उसकी वजह से मैं डिस्टर्ब रहती हूँ। वो बोली मुझे भी हाइपर एसिडिटी है, मैं बहुत इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ कि ये छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देने का, लेकिन फिर भी ये चीजें मुझे डिस्टर्ब करती है। बोली मुझे एलोपैथी मेडिसिन नहीं चलती, मैं कुछ भी मेडिसिन लेती हूँ एलोपैथी तो मुझे नॉशिएटिंग फील होता है या मुझे वॉमिटिंग होता है। अगर मैं सिंपल पैरासीटामोल भी लूँ तो भी मेरा मुंह एकदम कड़वा हो जाता है और फिर मैं वॉमिट कर लेती हूँ, इसके लिए मैं एलोपैथी नहीं लेती। बोली इसके लिए मैंने आयुर्वेदिक स्टार्ट किया था, बट उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर जब मेरे फ्रेंड ने बोला आपके बारे में, तो अभी मैं आपके पास आई हूँ। तो मैंने उसको पूछा और कुछ आपको बोलना है, तो बोली नहीं। तो मैंने उसको पूछा आपने पीएचडी करने का क्यों सोचा, ये कहाँ से आया आपके मन में। तो बोले कि मुझे एक्चुअली मेडिकल में जाना था, बट किसी रीजन की वजह से मैं मेडिकल में नहीं जा पाई। फिर मैंने फार्मेसी करने का सोचा और मैंने डिप्लोमा किया। डिप्लोमा करने के बाद किसी फैमिली मेंबर ने उसको सजेस्ट किया कि डिप्लोमा को अभी इतना वैल्यू नहीं है, तो बोली फिर मैंने डिग्री करने का सोचा। और बोली कि फिर मैंने मास्टर्स भी किया और मैं टीचिंग लाइन में चली गई क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता था। और बोली अभी मेरे जॉब का डिमांड ये है कि पीएचडी करना मैंडेटरी है, और मैं भी कहीं ना कहीं चाहती थी कि और ग्रो करूं, तो पीएचडी करना मेरे मन में भी था, और जॉब की भी डिमांड है, तो अभी मैं साथ साथ में जॉब के साथ पीएचडी भी कर रही हूँ। मैंने उसको पूछा आपको आप मेडिकल में नहीं जा पाए, तो उस वजह से कुछ आपको लगता है क्या। तो बोली कि नहीं अभी मुझे कुछ नहीं लगता। फिर वो हंस के बोली कि मैंने सीईटी का प्रिपरेशन ही नहीं किया था अच्छे से, तो इसके लिए मुझे उस बात का कुछ नहीं लगता। ये जो भी मैं कर रही हूँ मेरे मन से कर रही हूँ, मैंने पीएचडी तक का करने का पूरा डिसीजन मेरा था और मैं मेरे मन से कर रही हूँ और मैं खुश हूँ इससे। ठीक है, तो दिस इज द केस। तो ये पेशेंट जब भी 15 डेज बाद आई मेरे पास, मतलब 15 डेज बाद उसको बुलाया था, बट वो उसके और भी 8-10 दिन बाद आई, तो उसका पेन काफी कम था, मतलब नहीं के बराबर। फिर वो बोले कि मैं आ नहीं सकी, मतलब लेट हुआ मुझे 8-10 दिन आने में, क्योंकि मेरे मम्मी के घर पे सिलेंडर का स्फोट हो गया था, तो उसमें घर में थोड़ा सिचुएशन अच्छी नहीं थी, मतलब पेरेंट्स को कुछ नहीं हुआ, बट सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खराब हो गए, तो हम लोग उसी इसमें, तो इसके लिए हम लोग नहीं आ पाए। ठीक है, फिर उसके बाद वो ये 2 जैन को वो मेरे पास फर्स्ट टाइम आई थी, उसके बाद वो 3 वीक के बाद आई।
फिर डायरेक्टली शी केम टू मी इन अगस्त और फिर बोली कि मैं बहुत अच्छी थी और मुझे दर्द भी नहीं था। और जब भी अभी वो आई तो उसको थोड़ा वापस दर्द हो रहा था, इसके लिए आई। बोली कि बीच में सोनोग्राफी करवाया था, घर वालों ने बोला था, तो तभी स्टोन का साइज काफी कम हो गया था। और बोली मेरा वर्कलोड भी काफी चल रहा है, इसके लिए मैं नहीं आ पाई। सो अगेन आई गेव हर सम मेडिसिन and then she conceived. So this is the first part of the case. We will discuss first कि कौन से रेमेडी से वो कंसीव हुई और उसके बाद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी व्हाट वाज हर प्रेजेंटेशन एंड उसको बाद में क्या दिया वो हम डिस्कस करेंगे। सुनाई दी केस सबको? हेलो, केस सुनाई दिया ना सबको? यस मैम। कुछ बोलना है आपको? नो मैम, समझ नहीं पाए, मतलब इतना लॉन्ग केस था ना तो कुछ चीजें आउट ऑफ माइंड चली गई। क्या लॉन्ग केस था तो सम मतलब क्लियरली समझ नहीं पाया उसको ना, मतलब सब चीजों को कैसे को रिलेट करना है एक दूसरे से, ये चीज। जो भी समझा वो बोलो। और कोई? किसी को भी नहीं समझा? नो मैम। हेलो, बचपन से बहुत ही हार्ड लाइफ है उसकी, हेल्थ इश्यूज लेके फैमिली और उसके लिए। क्या सर? बचपन से उसकी लाइफ में बहुत हार्ड लगती है उसको, हार्ड लाइफ है कि हेल्थ इश्यूज है उसके फैमिली के, उसके फ्रॉम स्टार्टिंग। तो उसकी वजह से उसको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ रही है, ऐसे वो बोलती है। क्या बोल रहे हैं सर, बचपन से? हेलो, किसी को भी नहीं समझा केस? बचपन से उसको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ रही है, हेल्थ इश्यूज, और उसके फैमिली के भी हेल्थ इश्यूज है। और हाँ बहुत सारी रुकावट है उसकी वजह से भी, फिर भी वो एम्बिशियस है, लेकिन जो भी कुछ करना चाहती है उसमें कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड और कुछ फैमिली के इश्यू से उसमें बाधा आ जा रही है, हाँ। हिंडर्ड है। उसकी वजह से वो बहुत तकलीफ में है और अनफॉर्चुनेट फील कर रही है वो। तो मुझे चाइना लगती है, चाइना। चाइना, ओके। टॉर्मेंटेड। हम्म। और कोई? और कोई? हेलो मैम, इन शॉर्ट जरा सम अप कीजिए ना प्लीज। ओके, तो ये 32 ईयर्स की लेडी है, इसको गॉल स्टोन भी है। जब से ये सेकंड स्टैंडर्ड में थी तब से इसको गॉल स्टोन है। लेफ्ट साइडेड किडनी स्टोन भी है और 5 ईयर्स हो गए शादी को, उसको कंसीव भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये मेरे पास आई तभी उसको पेन हो रहा था, रेनल कोलिक उसको था। तो उसने बताया कि मुझे दर्द हो रहा है। तो मैंने उसको तो वो बार्ली वाटर और कोई पत्ते ले रही है वो, और किसी ने सजेस्ट किया था उसको। तो वो नेचुरल ऐसा लीव्स कोई खा रही है, बट बोले उससे भी मुझे आराम नहीं हुआ, रादर मेरा मुझे गैसेस होने लगे उससे। तो उसने वो भी बंद किया। और फिर मैंने उसको पूछा कि इसकी वजह से क्या लगता है, मूड में कुछ चेंजेस होते हैं क्या? तो बोली कि पेन की वजह से कुछ नहीं होता, बट मुझे अदरवाइज मतलब जॉब रिलेटेड स्ट्रेस है। जैसे इसने ये पीएचडी कर रही है और कॉलेज में पढ़ा भी रही है। तो बोली कि मेरा इंक्रीमेंट जैसे स्केड्यूल था, बट वो कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स के वजह से नहीं हुआ। और मेरे जो जूनियर्स थे उनको काफी ज्यादा इंक्रीमेंट मिला और उनको मेरे लेवल तक लाके रख दिया।
तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और बोली कि बचपन से वो देखती आ रही है, हेल्थ इश्यूज उसने काफी देखे हैं, मतलब उसके फादर बीमार रहते हैं, मदर बीमार रहती है, वो खुद भी बीमार रहती थी। तो काफी कम एज से उसने, वो बोली कि मेरा बचपन ही इससे गया, मैं भी कंटाल गई हूँ क्योंकि मैं यही देखते आ रही हूँ, कभी मम्मी बीमार, कभी पापा बीमार, कभी मैं बीमार। तो ये मेडिकल कंडीशंस को लेके मैं परेशान हो गई। मुझे अभी भी मुझे हाइपर एसिडिटी होती है, मैं इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर वो नहीं होता इग्नोर, वो चीज भी डिस्टर्ब करती है। और एलोपैथिक मेडिसिन, गोली की तकलीफ होती है, मुझे नौशिया वॉमिटिंग होता है, पैरासिटामोल खाऊंगी तो भी तकलीफ होती है। इसके लिए मैं अभी वो भी नहीं खाती। और तो मैं आयुर्वेदिक ले रही थी, उससे मुझे रिजल्ट नहीं मिला, तो मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया आपका नाम, तो मैं अभी आपके पास आई। और मुझे एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी गलती नहीं थी, मैं फुटपाथ से चल रही थी, तो मुझे एक लड़की ने स्कूटी से धक्का दिया, मैं गिर गई। फिर उसके बाद मुझे गर्दन में मतलब मार लगी और स्पॉन्डिलोसिस की तकलीफ चालू हो गई। शादी के 15 दिन बाद निमोनिया हो गया था उसको, तो बोली वो भी काफी सीवियर था। बोली सब कुछ करके देखा, वास्तु शास्त्र अनुसार क्या बोलते हैं, घर भी चेंज करके देखे, तो बोली कि लेकिन कुछ भी, उससे भी कुछ नहीं हुआ। और इसके हाथ में एक राइट साइड में उसने रिंग पहनी थी और लेफ्ट साइड में रिस्ट में उसने धागा बांधा हुआ। और जब भी वो बात कर रही थी ऐसा ऐसा, मतलब जब भी मैं क्वेश्चन पूछ रही थी या कुछ वो बोल रही थी, तो बोलते बोलते बीच में इस तरीके से वो कर रही थी। तो दिस इज द केस। और इसने पहले डिप्लोमा किया है फार्मेसी में, फिर डिग्री की, फिर मास्टर्स किया, और अभी शी इज परस्यूइंग पीएचडी। ठीक है, अभी समझा? यस मैम, थैंक Okay, अब बोलिए। बोलिए, किसने पूछा था शॉर्ट में केस बोलने को? डॉक्टर सुवर्णा यू। मैं बोली थी मैम। हाँ, तो बोलिए अभी आपका क्या समझा। मैं रूब्रिक्स निकाल रही हूँ। ऋतिक तक बाद में पहुंचे तो भी चलेगा, आपको क्या समझा केस के बारे में वो बता दीजिए। हाँ, काफी एम्बिशियस लेडी है। हम्म। और बहुत सारे हिंड्रेंसेस आए, तो इंस्पाइट ऑफ दैट उसने परसिवियर किया, मतलब पढ़ाई करती, मतलब पढ़ाई करके ऊपर के इस पे जा रही है। और मेडिसिन से ट्राई कर रही है अपने हेल्थ इश्यू सॉल्व करने के लिए। पहले ट्रेडिशनल प्रिजुडाइसिस, कुछ लीव्स वगैरह ये ट्राई कर रही है, होम रेमेडीज ट्राई कर रही है अपने हेल्थ इश्यू सॉल्व करने के लिए। उससे नहीं हो रहा है, आयुर्वेदिक भी ले रही है। फिर अलग अलग सिस्टम्स को कंसल्ट कर रही है, जैसे स्टोन्स वगैरह भी शायद पहन रही है उंगलियों में, आपने बोला। या घर में भी कुछ चेंजेस किए हैं, वो सब कर रही है टू गेट ओवर हर हेल्थ इशू प्रॉब्लम्स, हर एंड हर पेरेंट्स। और ये सब ये करके, आई डोंट नो, केयरफुलनेस भी है, मतलब वो अवॉइड कर रही है कई चीजें खाने को जिससे तकलीफ होती है। तो इसमें लैकेसेस आ रहा है, बट आई एम नॉट श्योर ऑफ इट। ओके, क्या रूब्रिक आ रहे हैं आपके दिमाग में डायग्नोसिस के? एम्बिशन इंक्रीज है, केयरफुलनेस, परसिवियरेंस, ट्रेडिशनल प्रिजुडाइसेस, सुपरस्टिशियस। ओके। और वो और जो आवाज कर रहे हैं मुंह से, उसको क्या ये करे, आई डोंट, आई वाज थिंकिंग ऑन इट। मैं सोच रही हूँ, जरा सोचती हूँ। उसके लिए आपको सर के कोर्सेज ज्वाइन करने पड़ेंगे, ये सिर्फ सर ही सिखाते हैं। बोलिए और कोई।
मेरी जो एनालिसिस बनी उसमें भी लेकेसिस आ रही है, लेकिन वो एक पॉइंट है ना कि जब अ, उनके जूनियर्स वो उनसे मतलब उनके लेवल पे आ गए हैं, तो वहां पे थोड़ी सी उनको हिंडरनेस आ रही है कि उनके जूनियर्स वहां पे पहुंच गए, अब मैं वहीं पे रुकी हुई हूँ। ये पॉइंट। और एक ये कि उनकी फैमिली बैकग्राउंड में सभी लोग पहले से बचपन से ही उनके बीमार रहे हुए हैं, और वो भी वैसे ही बीमार पड़ी चली आ रही है, और आगे इन्होंने सारा कुछ ट्राई कर लिया, आयुर्वेदिक ट्राई कर लिया या एलोपैथी ट्राई कर लिया, फिर वो होम्योपैथी की तरफ अपने फ्रेंड के सजेशन के थ्रू आई हुई है। तो रुब्रिक्स तो बहुत क्लियरिफिकेशन की नहीं है मेरी, तो मैंने बहुत अच्छे रुब्रिक्स नहीं लिए हैं, फिर भी दो चार लगा लिए हैं, तो लेकेसिस आ रही है। जैसे कि एक ये डिल्यूजन डूम रीडिंग मैंने लिया कि वो वास्तुशास्त्र के ऊपर बिलीव करती हैं, जादू टोना जैसा होता है, और सुपरस्टिशियस उन्होंने लिया है, और उनके फ्रेंड ने सजेस्ट किया ऐसा, इसके लिए मैंने लिया। और डिल्यूजन परसिक्यूटेड थी, बचपन से वो बीमारियों को परसीव करते चली हुई आ रही है, सभी चीजों से तंग आती है, कंटाल गई है, जैसा कि आपने बोला। और एम्बिशियस तो वो इतना है कि अपनी एम्बिशंस को लेके अपने जूनियर्स के प्रति शायद जेलसी रख रही है या क्या, ये नहीं पता। और रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके अंदर मुझे थोड़ी सी लगी है, ओके, आपने क्योंकि सुपरस्टिशियस क्यों लिया? सुपरस्टिशियस इसलिए कि उनकी फ्रेंड ने उन्हें सजेस्ट किया, फ्रेंड को क्या प्रॉब्लम थी ये नहीं पता, लेकिन फिर भी वो आपके पास चली आई, शायद मैं ठीक भी हो जाऊं, मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया। तो तो सर, उसकी फ्रेंड और उसके फ्रेंड का हस्बैंड इज माय पेशेंट और वो ठीक हो गया है, तो उन्होंने उनके रेफरेंस से आना सुपरस्टिशियस कैसे होगा? सुपरस्टिशियस मतलब उसको कोई भी बेस नहीं होता जो भी पेशेंट बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई चीज है क्या? तो कितने ऑब्जेक्ट पेशेंट अपने पास थ्रू दूसरे पेशेंट के रेफरेंस से आते हैं? जरूरी नहीं कि सब उनकी बीमारी भी सेम ही हो। मतलब कोई किडनी स्टोन के लिए आया है तो वो सिर्फ किडनी स्टोन के पेशेंट को ही रेफर करेगा, जरूरी नहीं है ऐसा। तो फिर हर हर रेफर्ड पेशेंट का रूब्रिक सुपरस्टिशियस हो जाए। इसीलिए मैम मैंने सुपे से शेयर किया उनकी प्रॉब्लम क्या रही होगी, और इनकी जो प्रॉब्लम है वो शायद डिफरेंट है, इसलिए मैंने बोला सेम प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए। उनकी प्रॉब्लम क्या है पता नहीं है, इसके लिए आप बोल रहे हो? यस मैम। नहीं, इनकी जो फ्रेंड की प्रॉब्लम थी वो डिफरेंट प्रॉब्लम है, इनकी जो प्रॉब्लम है वो डिफरेंट है, इनको कंसीव नहीं हो रहा, और भी और भी प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में चली आ रही हैं, तो इसके लिए। दिस इज नॉट सुपरस्टिशियस। सॉरी अगर मैम, अगर समझो ऐसा सर, अंडरस्टैंड। समझो, अभी आप किसी और मेथड से प्रैक्टिस करते हो, बराबर है? और यस मैम। आपके किसी फ्रेंड ने आपको बोला कि लियाकत सर माइंड मेथड से पढ़ाते, बहुत अच्छा पढ़ाते, मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट लगी। तो आप जो डिफिकल्टीज फेस कर रहे हो, नॉट नेसेसरीली आपका फ्रेंड भी पहले दूसरे मेथड से वही डिफिकल्टी फेस कर रहा होगा। बट आपने देख के कि मेरी दोस्त की इम्प्रूवमेंट हो गई ये सर को जुड़ने के बाद, तो आपको अगर ऐसा लगा कि मैं भी जुड़ जाऊं, तो क्या ये सुपरस्टिशियस होगा कि आप ऐसा ब्लाइंडली जुड़ जा रहे? नो आपको मैम, कुछ ये तो सुपर। लगा होगा ना कि आपने आपके फ्रेंड से बात की होगी, इम्प्रेशनेबल भी लिख सकते हैं फ्रेंड ना, उसमें इम्प्रेशनेबल। डिफरेंस देखा होगा, तब आप सोचोगे कि जाने का वहां पे। यस मैम, ये सुपरस्टिशियस नहीं होगा तो सेम मेरे। सिचुएशन पेशेंट का भी है, बस यहाँ पे बीमारी है, यहाँ पे पढ़ाई है। ओके मैम, सुपरस्टिशियस निकाल दे तो 2 मेडिसिन आ जाएगी, फिर एक मेडोरिनम और सिलेकेसिस चाहिए, बहुत सारी हो जाती है फिर तो। ओके, ठीक है। अब आप सुपरस्टिशियस रूब्रिक ये केस में है, बट जिस तरीके से आप ले रहे हो वो गलत है। रादर उस चीज को हम कई बार ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लेते हैं, इम्प्रेशनेबल भी लेते हैं कई बार। डिपेंड्स ऑन केस कि पेशेंट का वो थ्रेड क्या चल रहा है थ्रू आउट द केस। ठीक है ना? सुपरस्टिशियस ये केस में है, बट इस तरीके से नहीं लेंगे उसको। और कोई?
और कोई? और किसी को बोलना है या मैं डिस्क्लोज कर दूं? ठीक है, तो मैं डिस्क्लोज करती हूँ केस। तो इसमें फर्स्ट चीज जैसे सुपरस्टिशियस बताया, आई थिंक डॉक्टर सुवर्णा पाटिल सुपरस्टिशियस। तो सुपरस्टिशियस थे इसमें क्योंकि इन्होंने वास्तुशास्त्रानुसार घर भी बदले। तो इस चीज को कोई बेस नहीं है ना कि घर बदलने से किसी की बीमारियां ठीक होती है क्या? ये सॉल्यूशन नहीं है ना। बीमारी आ रही है तो घर बदलो, फिर ये अंधश्रद्धा हो गई, ये सुपरस्टिशियस हो गया। प्लस उसके हाथ में धागा भी है। ये मैंने बोला जैसे राइट हैंड में उसके धागा भी है और उसके लेफ्ट हैंड में रिंग भी है। प्लस ये लेडी ने बोला जहां पे भी मैं सेट होने की कोशिश करती हूँ या वहां पे कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो सुपरस्टिशियस। कहीं पे भी सेट होने का और बीमारी आने का ऐसा कुछ कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये भी उसका जो मानना है कि मैं जब सेट होने की कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। दिस इज ऑल्सो सुपरस्टिशियस। ठीक है। दूसरा, ये जो बोल रही है ऐसा कर रही है काफी वक्त उसने वो किया बोलते बोलते, ये हम ऐसा हमारा रिएक्शन कब होता है, कब हम इस तरीके से करते हैं? आप करके देखो, आप कौन से वक्त इस तरीके का करो? कोई बता सकता है? वैतागल्यावर ओके। नाही होत असले कुठली गोष्ट तर और क्या है? कुठलं काम होत नसलं या कुठले अडथळे येत असले तर वैतागल्यावर आपण असं करतो ना. ओके। और जब भी हमको सामने वाले को जवाब भी नहीं देने का होता है ना, तो जान पे आता है कि अरे क्या पूछ रहे थे आप, मतलब इस तरीके से। तो आंसरिंग अवर्जन टू आंसर सिंपल, इसको इस तरीके से लेते, क्योंकि एक दो बार जब भी मैंने इसको सवाल पूछा वो और फिर वो आगे बोल रही है। ठीक है, सो दिस इज सिंपल आंसरिंग अवर्जन टू आंसर। इसका और भी रूब्रिक ले सकते हैं, बट अभी वो ये कोर्स से रिलेटेड नहीं है तो हम वो रूब्रिक की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है। दूसरा है जो बार बार बोल रही ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। रिगार्डिंग उसका सैलरी इंक्रीमेंट भी नहीं हुआ, उसके लिए भी बीमारी को भी लेके, क्योंकि बचपन से मैं यही देखते आ रही हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो दिस इज अनफॉर्चुनेट थिंग्स। ठीक है। प्लस उसका बहुत कम उम्र में उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। अभी वो 32 ईयर्स की है और 22 ईयर्स से उसके फादर की तकलीफ चल रही है। मतलब वो 9-10 साल की थी तब से ही उसका फादर का तकलीफ चल रहा है। प्लस बोली मम्मी का भी एक्सीडेंट हुआ तभी भी वो बहुत छोटी थी। तो बहुत छोटे उम्र में इसको फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है। अभी इसकी शादी हो गई लेकिन फिर भी क्या बोली वो कि अभी भी मतलब हम तीनों ही है मायके में, मम्मी पापा और मैं। तो अभी भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है, मेरे ऊपर ही है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो शी इज स्टिल फीलिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑफ कोर्स शी इज अ रिस्पॉन्सिबल गर्ल, इसके लिए वो कर रही है, बट वो जिम्मेदारी का वो बोझ लेके चलते हैं। So this is elements from responsibility because she's still feeling वो sense of responsibility। ठीक है। प्लस उसने सॉरी डिप्लोमा किया, डिग्री किया, मास्टर्स किया, अभी वो पीएचडी भी कर रही है। तो वो एम्बिशियस भी है, तो सिंपल एम्बिशन इंक्रीज। ठीक है। और जो उसने बोला कि एलोपैथी मेडिसिन मैं नहीं ले सकती, मुझे तकलीफ होती है, तुरंत वॉमिट हो जाता है, नौशिया होता है, पैरासीटामोल भी लेती हूँ तो भी तकलीफ होती है। इतना पैरासीटामोल से
बहुत कम लोग रहेंगे उसको उनको तकलीफ होती है। तो इसका रूब्रिक रहेगा, अगर हम जनरलिटीज में जाएंगे, मेडिसिन एलोपैथिक ओवर सेंसिटिव टू, सिंपल डायरेक्ट रूब्रिक है इसका, ठीक है। और दूसरा है डिल्यूजन रॉन्ग सफर्स। ये मैंने इसके लिए लिया क्योंकि जैसे उसने बोला ना कि मेरी कोई भी गलती नहीं थी, कोई भी विदाउट एनी रीजन, जब मैं फुटपाथ से चल रही हूँ एक लड़की ने आके मुझे स्कूटी से ठोक दिया और फिर मैं मुझे लग गया और उसके बाद से मुझे भी स्पॉन्डिलोसिस की तकलीफ चालू हो गई। तो दिस इज डिल्यूजन रॉन्ग सफर। प्लस हम डिल्यूजन रॉन्ग सफर रेट्रोस्पेक्टिवली भी सोचेंगे, अगर हम उसकी चाइल्डहुड की बात करें तो एज अ चिल्ड्रन भी उसके साथ गलत हुआ है। तो नाउ गलत होना नॉट नेसेसरीली कि मतलब इन चिल्ड्रन में बात कर रही हूँ कि पेशेंट बोलेगा, अभी वो बचपन में किसी का तो भी ठीक है ना, बट रॉन्ग सफर ये गॉड की तरफ से भी लग सकता है कि मेरे साथ गलत हुआ, ना भगवान ने मेरे साथ गलत किया। तो ये केस में ये रूब्रिक 100% नहीं है, लेकिन जस्ट हम रॉन्ग सपोर्ट की बात कर रहे हैं। और ये लड़की का भी चाइल्डहुड कुछ अच्छा नहीं रहा और डिफिकल्ट, शी हैड अ डिफिकल्ट चाइल्डहुड। इसके लिए जस्ट रेट्रोस्पेक्टिवली मैं ये रूब्रिक आपको बता रही हूँ कि वहां पे भी ये जो हम रूब्रिक लेंगे, डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड इन चिल्ड्रन, इसमें भी ये रेमेडी है। बट ये केस में ये 100% एक्ट नहीं है, बट जस्ट आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पे रॉन्ग मतलब इस तरीके से भी होता है कि जब उसके खेलने कूदने की उम्र थी, मतलब 9-10 साल के उम्र से ही वो पेरेंट्स की बीमारियां ही देखते आई है। मतलब अभी भी वो यही बोलती है कि मैं यही देख के बड़ी हुई हूँ, ये बचपन से ही मैं देखते आ रही हूँ। तो जहाँ पे हम हमारी खेलने कूदने की उम्र रहती है, तब ये लड़की ने लड़की ये ने ये सारी चीजें एक्सपीरियंस नहीं की है। उससे ज्यादा उसने फैमिली का पेनफुल सिचुएशन देखा है, सफरिंग देखा है, ठीक है ना। तो डिल्यूजन रॉन्ग सफर्ड इन चिल्ड्रन भी है। Plus elements from abused after being in children. So this is the single remedy. So I gave her carcinosin. अगर ये सब rubric हम डालेंगे, delusion, wrong support and elements from abuse being, मैं retrospectively बात कर रही हूँ, बट बाकी सारे रूब्रिक डालेंगे तो कार्सिनोसिन आएगा इसका, ठीक है। तो अगेन अब्यूज्ड मतलब यहाँ पे जैसे हम एक्चुअली अब्यूज्ड ऐसा नहीं देंगे, एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज्ड बीइंग आफ्टर रेप में भी कार्सिनोसिन है, ठीक है। बट यहाँ पे हम ऐसा डायरेक्ट नहीं सोच रहे। यहाँ पे अब्यूज्ड का मतलब क्या है, जैसे सर हमेशा बताते हैं, एबनॉर्मल यूज। तो जो भी बच्चे जैसे लेबर क्लास के बच्चे रहते हैं, या जैसे सिग्नल पे भीख मांगने के लिए बच्चों को खड़ा किया जाता है, सो दिस इज चाइल्ड लेबर, सो दिस इज एबनॉर्मल यूज। वो बच्चों की उम्र रहती है खेलने कूदने की, पढ़ने की, उस उम्र में वो बच्चों से इस तरीके के काम करवाए जाते हैं। प्लस अगर उसमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया कि जहाँ पे बचपन वो जी नहीं पाते हैं, उनको काम करना पड़ता है, फिर इस तरीके से ये कार्सिनोसिन की तरफ जाता है। सो आई गेव हर कार्सिनोसिन। जब भी वो 3 वीक्स बाद मेरे पास आई, जैसे मैंने बोला उसका दर्द वगैरह एकदम कम हो गया था। फिर वो डायरेक्ट जनवरी के बाद मेरे पास अगस्त में आई। तो जब वो अगस्त में आई तो उसको वापस हल्का सा दर्द हो रहा था, और वो दर्द के लिए और फिर इनफर्टिलिटी का भी उसको कंटिन्यू करना था। तो व्हेन शी केम टू मी, दैट वाज हर 8th डे ऑफ मेंसेस।
तो मैंने वापस कार्सिनोसिन 30 उसको रिपीट किया स्टैट डोज। ठीक है। फिर उसके बाद ये लेडी 1.5 महीने के बाद मेरे पास आई। तो अभी जब वो आई तो जैसे वो अंदर आई और बोली कि एकदम उसका चेहरा मतलब उतरा हुआ था एकदम, जैसे वो सैड थी, उतरा हुआ चेहरा था। फिर वो बोली कि आपके मेडिसिन से मुझे कंसीव हो गया। बट इसने अभी उसको 2 महीने होने को आए थे तभी, लेकिन इस लेडी ने मुझे नहीं बताया कि उसको कंसीव हो गया। ठीक है। जब अभी उसको तकलीफ हो रही है तब वो मेरे पास आ रही है और बोल रही है कि आपकी दवाई से मुझे कंसीव हो गया, लेकिन आपको मेरा प्रॉब्लम तो आपको पता है। मतलब एकदम इस तरीके से और इतना धीरे से बात कर रही थी, मुझे आपकी दवाई से कंसीव हो गया, आपको मेरा प्रॉब्लम तो पता है, मुझे कितना हाइपर एसिडिटी होता है। उसकी आंखें वगैरह भरी हुई थी। बोलती मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ होती है, बहुत बर्निंग हो रही है, मेरे गले में जैसे फोड़ आ गए हैं, मुझे अभी लग रहा है मेरे पेट में भोग पड़ जाएंगे। जैसे शी वॉज मराठी स्पीकिंग, तो भोग मतलब जैसे होल बोलते हैं ना लोग, वैसा भोग पड़ जाएंगे, मेरा पेट फट जाएगा, मैं मर जाऊंगी। एकदम इस तरीके से वो बात कर रही थी। मैं कुछ खा भी नहीं पा रही हूँ, मतलब 2-3 दिन से तो मैं सिर्फ लिक्विड ले रही हूँ। स्टार्टिंग में तो कुछ मैं रोटी सब्जी खा लेती थी, लेकिन अभी तो मैं कुछ भी खा नहीं पा रही हूँ। तो मैंने उसको पूछा कब से हो रहा है आपको, तो बोली कि थोड़ा थोड़ा मुझे तकलीफ होती थी, बट प्रेगनेंसी में जैसे नौशिया वॉमिटिंग होता है तो और उसने गायनेक को भी दिखाया था, यूएसजी भी हो गया था, उसका प्रेगनेंसी कंफर्म भी हो गया था। तो बोली उन्होंने भी उसको फॉलिक एसिड वगैरह दे दिया था। बोले अभी 1 वीक से मुझे बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मैं गायनेक के पास भी गई तो उन्होंने जेलुसिल जैसा कुछ सिरप दिया, बट मतलब उससे भी उसको आराम नहीं हो रहा है। मैं सो भी नहीं सकती, मैं लेट जाती हूँ तो पूरा एसिड बॉडी ऊपर आ जाता है। तो मैं जैसे कोकोनट वाटर या बटर मिल्क या आइसक्रीम वो भी नहीं खा सकती कि मैं कुछ ठंडा ले लूंगी तो मेरी एसिडिटी ठीक हो जाएगी, कम हो जाएगा, मैं कुछ खा पाऊंगी। तो बोली मैं वो भी नहीं कर पा रही। तो मुझे इतनी तकलीफ हो रही कि मेरी फैमिली अभी बोल रही है कि तू सोच लेना, मतलब इतने सालों बाद कंसीव हुआ है, लेकिन अगर तू इस तरीके की तेरी हालत रहेगी तो फिर हम लोग सोच लेते हैं और हम लोग अबॉर्ट करने का डिसीजन ले लेंगे। ठीक है। एंड दैट्स व्हेन शी अगेन केम टू मी ये कंप्लेंट्स को लेके। सो नाउ आई गेव हर अ डिफरेंट रेमेडी। सो बिकॉज पहले उसको कार्सिनोसिन दिया था, मतलब कहीं ना कहीं वो एक, जैसे हम मायाजन्स की बात करते हैं, नोजोर की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका वो मायाजमेटिक ब्लॉक था बचपन से, वो इतना सफर कर रही थी। तो उसको राइट रेमेडी राइट टाइम पे मिलने से उसको 1 मंथ में ही कंसीव हो गया। बट नाउ शी इज प्रेजेंटिंग दिस काइंड ऑफ सिम्टम। तो जब भी उसने मुझे बोला, मतलब इस तरीके से एकदम रोतड़ा फेस बना के जैसे उसने बोला, मेरे लिए वो बहुत न्यू था कि कोई प्रेग्नेंट लेडी इस तरीके से बात कर रही है कि मेरे पेट को भोग पड़ेंगे, मेरा पेट फट जाएगा, मैं मर जाऊंगी। तो ये चीज मुझे बहुत पैथोलॉजिकल लगी कि आई फेल्ट कि प्रेग्नेंट लेडी शुड नॉट स्पीक लाइक दिस, दिस इज समथिंग स्ट्राइकिंग, यू नो। जैसे पिक्यूलियर है वो, सर एसएसक्यूपी बोलते हैं। तो आई फेल्ट कि दिस इज द टाइम कि हमने उसको ठीक करना चाहिए। मतलब कंसीव हुआ है, लेकिन इस तरीके का प्रेजेंटेशन है जहाँ पे अब तक वो बच्चा होने के लिए कोशिश कर रही थी और अब बच्चा हुआ, मतलब कंसीव हुआ है, तो फैमिली बोल रही है कि अबॉर्ट कर लेंगे। तो जहाँ पे भी बहुत सारा ऐसा मीथ रहता है ना कि होम्योपैथी एक्ट्स वेरी स्लो, होम्योपैथी से तो टाइम ही लगता है। तो उन लोगों के लिए, और वैसे इसमें ये केसेस रहते हैं कि जहाँ पे हम
दिखा सकते हैं कि कितना क्विक होम्योपैथी एक्ट करती है अगर हमारी रेमेडी सही है तो अभी जब ये आई है तब उसका रेमेडी क्या आएगा, क्या प्रेजेंटेशन है उसकी? हेलो। अरे आज सब डेलीरियम साइलेंट में क्यों चली गए? बोलो तो सही, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं कुछ प्रवचन दे रही हूँ, अकेली बड़बड़ कर रही हूँ। अभी ये पार्ट तो बहुत छोटा था, पहला वाला पार्ट आई एग्री कि बड़ी थी केस, बट इसमें तो बोल सकते इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। एनीबडी? हेलो। किसी को बोलना है? बहुत ही स्ट्रेंज है कि प्रेगनेंसी के बाद इतनी तकलीफ लेने के बाद प्रेगनेंसी रही और उसके बाद वो अबॉर्ट करना चाहती है, तो उसको उतना पेनफुल कंडीशन है, इस वजह से वो कर रही है। लेकिन ऐसा बहुत स्ट्रेंज लग रहा है, ऐसा कैसे सोच रही है वो? नहीं, वो नहीं सोच रही है, उसकी फैमिली उसको ऐसा बोल रही है कि अगर अच्छा। मेरी कंडीशन इसी तरीके की रहेगी, बोली मुझे इतनी तकलीफ होती है कि मतलब फैमिली भी देख नहीं पा रही है ऐसी सिचुएशन में। तो फैमिली बोल रही है कि अब तुम सोचो ऐसा, फिर आगे कंटिन्यू करना है नहीं करना है, और ऐसे ही तकलीफ होगी तो नहीं करेंगे कंटिन्यू। कोई बोलना चाहता है? हेलो। क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या सब बाउंसर जा रहे हैं, या मैं अच्छे से केस नरेट नहीं कर रही हूँ? क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको? मैम केस आपने बहुत अच्छा नरेट किया, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा, खासकर मुझे। कुछ तो समझा होगा। हाँ, ये कि उसका पेट फट जाएगा, वो ऐसा उसको सोच रही है, तो ये फियर डिजीज का फिर इम्पेंडिंग लग रहा है। और जो ये इसकी फीलिंग्स है कि नहीं, मतलब अभी प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया मैं, तो अभी ये क्या होगा, फिर ये ऐसा घर वाले भी उसको ऐसा बोल रहे हैं ना। उसको कोई मतलब ऐसा नहीं बोल रहा है कि नहीं चलो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं कोई कह रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि तुम चाहो तो हम इसे अबॉर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ मुझे सही नहीं लग रहा, क्योंकि उसे एक बार सांत्वना देनी चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए था वहां पे। क्या आखिर का सेंटेंस आपने क्या बोला? कि नहीं, उसको मतलब समझाना चाहिए कि इतने दिनों बाद कंसीव हुआ है, परसीव करो इसको और डॉक्टर को दिखाओ, अच्छा हो जाएगा, सब सही होगा। ऐसा कोई नहीं कह रहा, सब ये कह रहे हैं कि नहीं, मतलब तुम अगर नहीं परसीव कर पा रही तो फिर हम इसे अबॉर्ट कर दें। बट सर अपने को दवाई इसको देनी है ना, अभी घर वालों को तो नहीं देनी है अपने को, वो तो घर वालों की सोच है। अपने को इसका प्रेजेंटेशन देखना है, वो किस तरीके से प्रेजेंट कर रही है। क्या ये चीज नॉर्मल है? पेशेंट प्रेग्नेंट लेडी आके आपके सामने ऐसी बात करी, मेरा पेट फट जाएगा, पेट को भूख पड़ जाएंगे, मैं मर जाऊंगी। क्या ये नॉर्मल चीज है? ये नॉर्मल प्रेजेंटेशन है? नो मैम, ये तो नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल में जाएगा। उसको तो पेन ये बहुत क्या ज्यादा है? प्रॉब्लम कर रही है। यही तो समझना है मैम, इसी के लिए आपके पास बैठे। और वो अकेले आई है इस टाइम पे, ऐसे कोई अकेले आती भी नहीं ना। नहीं नहीं, उसकी आई है ना, हस्बैंड है ना, अकेली नहीं आई। पहली बार वो अपने फ्रेंड के साथ आई थी, क्योंकि उसके फ्रेंड मेरे क्लिनिक के बाजू में ही रहते। तो
तभी वो अकेली आई थी, उसके बाद हमेशा वो उसके हस्बैंड के साथ ही आई। क्या है म्यूरेटिक एसिड में? गुड इवनिंग मैम। विमल सर। मैम वो rubric anxiety abdomen with distension of but sensation as if abdomen would। क्या सर? मैम एक rubric है, एब्डामिन में सेंसेशन ऐसा होता है उसका पेट फट जाएगा, उसको लेके एंजाइटी रहती है। अच्छा, ओके। और मेटाफोरिकली इसको कैसे सोचेंगे? हम एम्पथी से जाते हैं ना, जैसे हमारा fear of एम्पथी। हाँ, fear of being deformed रहता है। फियर ऑफ बीइंग। डिफॉर्म होने का मतलब कि अभी उसने बोला ना कि पेट को छिद्र हो जाएगा, होल हो जाएगा, हाँ। तो डिफॉर्मिटी हो जाएगी, ऐसा उसको लग रहा है। इंजुरी इंजुरी के आगे भी है ना अभी वो छेद, मतलब हम्म। इंजुरी, ऐसा मुझे लग रहा है। हम्म। बट ऐसा पढ़ते हैं क्या एसिडिटी की वजह से पेट को छिद्र, जो भी है होल, ऐसा पढ़ते हैं क्या? किसी का पेट फट जाता है क्या? कोई थोड़ा फट बाळ जाता चढा है के क्या बोल रही है एसिडिटी क्या? की वजह से? हाँ, थोड़ा वाढवून सांगतेय का ती? उसको उतना एसिडिटी हो रहा है तो वो बता रही है। तो अगेन ये जो रेमेडी है उसका ये प्रेजेंटेशन, जैसे मैंने समझा है ये रेमेडी मतलब बाकी पेशेंट ने भी देखा है, ऐसा ऐसा स्टेट नहीं, बट ये रेमेडी काफी उसे ओवर सेंसिटिव जैसा उसका प्रेजेंटेशन रहता है। मतलब वो जिस तरीके से बात कर रही थी वो बढ़ा चढ़ा के बोल रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। वो एकदम ऐसा मुंह बना के सैड फेस और आंखें उसके, मतलब आंखों में उसके पानी था। शी वॉज इन टीयर्स। कोई कोशिश करना चाहता है या फिर हम आगे बढ़े? चलो मैं हम आगे रूब्रिक की तरफ जाते हैं, एनालिसिस। तो यहाँ पे इसको डर भी लग रहा है, बराबर। और इसको ऐसा लग रहा है ये इसका डिल्यूजन है, राइट, इसका भ्रम है। सच सच में जैसे बताया पहले, एसिडिटी के वजह से किसी का ना पेट फटता है ना कोई मरने वाला है, राइट। तो इसका ये डिल्यूजन है कि इसको इस तरीके से लग रहा है। तो यहाँ पे रुब्रिक आएगा। एंड थैंक्स टू अवर गुरुजी लियाकत सर, सर ने ये रूब्रिक हमको काफी अच्छे तरीके से सिखाया है। तो डिल्यूजन, इमेजेस, फैंटम्स, सीज ब्लैक। तो यहाँ पे डिल्यूजन मतलब इसका भ्रम है, और फैंटम्स मतलब समथिंग दैट यू थिंक एग्जिस्ट बट इट इज नॉट रियल, जो असल में है नहीं रियलिटी में, बट हम सोचते हैं उस चीज को। एंड इट इज वेरी स्कैरी क्योंकि ये ब्लैक है ना, आगे क्या है, ब्लैक। ब्लैक मतलब क्या, डार्क ना, डार्कनेस से डर लगता है ना। जैसे अंधेरे में अपने को डर लगता है, राइट। तो ये ब्लैक मतलब डरावना होता है ना, तो यहाँ पे भी ये जो बोल रही है वो स्कैरी है ना उसके लिए, राइट। तो डिल्यूजन, इमेजेस, फैंटम्स, सी ब्लैक, मतलब आगे उसको सर सब डरावना, डरावनी चीजें है ना उसके आगे। अंधेरा मतलब क्या, अंधेरे से डर लगता है, स्कैरी। सो ये जो सिचुएशन है वो भी डरावनी है। और प्लस डिल्यूजन्स, विजन्स हैज हॉरिबल, ठीक है। तो हॉरिबल मतलब क्या होता है, कॉजिंग, likely to cause horror,
ठीक है, it is causing or it is likely to cause horror और shocking. So this is shocking ना अपने को, मतलब मुझे भी जब भी मैंने इसका ये सुना तो आई फेल्ट कि इसको राइट मेडिसिन देनी ही चाहिए। और मैंने स्टार्टिंग में इसके लिए बोला कि ये एंटीनेटल केयर आई फाउंड इट मोर चैलेंजिंग इनफर्टिलिटी ट्रीट करने से भी, क्योंकि यहाँ पे आप किसी भी तरीके का रिस्क नहीं ले सकते या कुछ भी गैम्बल नहीं कर सकते कि रेमेडी थोड़ा आगे पीछे गया तो भी, अदरवाइज हम को थोड़ा 19-20 है, हम वापस रीएनालाइज करके राइट मेडिसिन तक जाते हैं। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम किसी भी इस तरीके का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। और जबकि पेशेंट इतना पैथोलॉजिकल स्टेट में है, मतलब उसका माइंड का ये जो पैथोलॉजिकल स्टेट है कि उसको लग रहा है वो मर जाएगी, उसका पेट फट जाएगा, उसको ये स्टेट में से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। अगर उसको इस वक्त राइट मेडिसिन नहीं मिली होती, वो ठीक नहीं होती, तो शायद फैमिली के प्रेशर में आके या फिर इसने भी सोच लिया होता, बच्चे को अबॉर्ट कर लिया होता। ठीक है ना। तो 5 साल के बाद कंसीव होके भी ये डिसीजन लेने पे फैमिली का ये जा रहा था कि बच्ची को तकलीफ हो रही है तो हम उसको अबॉर्ट करने को भी उन्होंने सलाह दी थी कि अगर नहीं हो रहा है सहन, इस तरीके की सिचुएशन रहेगी तो कंटिन्यू नहीं करेंगे। प्लस इसको अगर कार्सिनोसिन पहले नहीं मिला होता, उसका मायस्मेटिक ब्लॉक बोल सकते हैं, या उसका उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी उस वक्त जो प्रेजेंटेशन था उसमें भी कार्सिनोसिन आ रहा था थ्रू आउट, तो अगर उसका वो जो रॉन्ग सपोर्ट वाला चीजें वो अगर वो ट्रीट नहीं होती थी राइट टाइम पे, तो अभी ये जो प्रेजेंटेशन है उसका, ये इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता था। शायद वो सुसाइडल टेंडेंसी में भी जा सकती थी, इस तरीके के भी थॉट उसको आ सकते थे, या उसका बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी आ सकती थी, क्योंकि शी वॉज कैरिंग दैट लोड थ्रू आउट सिंस उसका चाइल्डहुड से लेके 32 के एज तक शी वॉज कैरिंग दैट लोड। जैसे सर हमेशा कार्सिनोसिन सर ने इतने अच्छे से पढ़ाया हमको, और जब भी सर कार्सिनोसिन पढ़ाते हैं तो मतलब सर वो पेशेंट के चाइल्डहुड के बारे में बताते हैं तो बहुत डिफिकल्ट रहता है कार्सिनोसिन का चाइल्डहुड अक्सर। तो मतलब मैं कुछ बोलने से अच्छा सर से आप कार्सिनोसिन सीखोगे तो आपको बहुत मजा आ जाएगा, और आपको रियल इसेंस ऑफ होम्योपैथी को आप सीख कर पाओगे, इतना अच्छा सर कार्सिनोसिन पढ़ाते हैं। तो ये 2 रूब्रिक उसके वो स्टेट के लिए थे। ठीक है, अभी ये लेडी जिसने मेरे पास पहले भी कंटिन्यू नहीं आई, जब उसको तकलीफ हुई आई, अभी भी मैंने उसको दिस टाइम आई गेव हर पल्सेटिला, राइट। ये 2 रूब्रिक्स प्लस आगे के रूब्रिक में बताती हूँ। अभी ये कंसीव होने के बाद 1.5 महीने के बाद मेरे पास आई, उसने ना मुझे मैसेज किया या कॉल करके भी बोल सकती थी कि उसको उसका यूपीटी पॉजिटिव आया है, बट जब उसको तकलीफ हो रही है तब वो मेरे पास आ रही है। और तभी भी मैंने उसको बोला कि आप 9 मंथ कंटिन्यू रेगुलर मेडिसिन ले लेना, आप गैप मत डालो। तो शी सेड यस, बट उसके बाद भी हार्डली वो 4 बार मेरे पास आई होगी टिल उसका डिलीवरी तक। तो अगर मैं रेट्रोस्पेक्टिवली अभी ये केस को जैसे स्टडी कर रही थी तो मैंने समझा कि इसको जब जरूरत है तब वो मुझे फोन कर रही है, जब जरूरत है तब वो मेरे पास आ रही है, अदरवाइज वो नहीं आ रही। तो फिर उसको एसएलपी दिया 15 दिन का, तो वो उसको 1 महीना 1.5 महीना चला रही है, कभी 2 महीने में आ रही है, ऐसे बहुत ऐसा रैंडमली वो मेरे पास 4 बार आई। तो ये मुझे, और जब भी आती है तो बहुत एकदम जैसे क्लोजली बात करती है, आपको तो पता है ना डॉक्टर मेरा प्रॉब्लम इस तरीके से। तो मुझे ये क्लिंगिंग जैसा भी लगा, लेकिन ये क्लिंगिंग पर्सन और फर्नीचर, जैसे सर पढ़ाते हैं ना ये रूब्रिक पर्सन और फर्नीचर, मतलब यहाँ पे पर्सन और फर्नीचर की तुलना की है, पर्सन को फर्नीचर
ये जैसा बताया गया है, जैसे फर्नीचर का यूज क्या होता है, जब हमको जरूरत है हम उसको लेते हैं, नहीं तो वो घर में कोने में पड़ा रहता है, राइट। तो यहाँ पे भी जब उसको जरूरत है, उसको तकलीफ हो रही है, तब वो मेरे पास आ रही है, तब वो मुझे फोन कर रही है, अदरवाइज वो डिसअपियर। वो कुछ भी मतलब ना वो किसी को भेज रही है मेडिसिन लेने के लिए, ना खुद आ रही है, ना वो कुछ अपडेट कर रही है। तो ये क्लिंगिंग पर्सन फर्नीचर लगा। और जिस तरीके से वो उसका फेशियल एक्सप्रेशन थे और जिस तरीके से वो कंप्लेन कर रही थी, दैट आई टू कंप्लेनिंग पिटीफुल। एकदम ऐसा ऐसा मुंह बना के, फेस एकदम उतरा हुआ था, और उसने वो जिस तरीके से बात कर रही थी, एंड शी वॉज टेलिंग हर कंप्लेंट्स वन बाय वन, सो आई टुक इट एज कंप्लेनिंग पिटीफुल। So I gave her Pulsatilla 30. I asked her to wait for 10 minutes. उसको एक डोज देके बाहर बिठाया, और यू वोंट बिलीव, 10 मिनट्स के बाद जब वो अंदर आई, तो शी सेड कि मुझे अभी काफी अच्छा लग रहा है। मतलब जो वो बोल रही थी ना कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब इतना बर्निंग ही हो रहा है पूरा, मुझे यहाँ तक ऐसा फील हो रहा है बर्निंग। तो जब भी 10 मिनट्स बाद शी सेड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड देयर वाज स्माइल ऑन हर फेस। पहले जो उसकी आंखों में पानी था, वो एकदम जैसे रोतड़ा फेस उसका हुआ था, देयर वाज स्माइल ऑन हर फेस। सो दैट इज रियल विक्ट्री फॉर अस, और अचीवमेंट जैसा हम बोल सकते थे। उसके फेशियल एक्सप्रेशन टोटली चेंज हो गए थे, मतलब एकदम सैड से उसके चेहरे पे वो एक हैप्पीनेस, वो ट्रांसफॉर्मेशन विद इन 10 मिनट्स। ये दिस इज द मैजिक ऑफ होम्योपैथी। सो through such cases we can show how wonderfully homeopathy acts. So again one more rubric, जैसे रेट्रोस्पेक्टिवली अभी उसकी डिलीवरी हो गई लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। तो 4-5 डेज बैक रात को 11:15 11:30 बजे उसका मैसेज आया कि डॉक्टर सॉरी फॉर लेट मैसेज, मुझे 26 अप्रैल को बेटी हो गई है, और अभी मुझे मतलब ये हो रहा है, फिशर जैसा उसको आपस तकलीफ हुई थी, और नॉर्मल डिलीवरी हुई उसकी। देखो इतना, क्योंकि उसको कार्सिनोसिन सही टाइम पे मिला, प्लस उसको पल्सिटिला भी सही टाइम पे मिला, तब शी जाके डिलीवर्ड अ नॉर्मल बेबी। ऐसे सिचुएशन में भी, नहीं तो ये ब्लॉक अगर नहीं निकलता, कार्सिनोसिन उसको मिलना बहुत जरूरी था उस वक्त। अगर उसको राइट रेमेडी नहीं मिलती थी तो कुछ एबनॉर्मेलिटी में जा सकते थे, या नॉर्मल डिलीवरी शायद नहीं भी हो सकती थी उसको। ठीक है, तो अभी भी जब उसको जरूरत है तो वो मुझे कॉल कर रही है, बोली मेरे को ज्यादा मिल्क सिक्रेशन नहीं हो रहा है, बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है, उसको पाउडर वगैरह समथिंग दे ट्राइड बट वो नहीं हो रहा है। तो बोली कि वो लैक्टेशन के लिए भी मुझे आपसे दवाई लेनी है। एंड अभी वो मुझे उसने, जब उसको तकलीफ हो रही है इसके लिए बोला, अभी उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी तो वो तो अच्छे से रह गया। फिर उसके फादर भी मेरे पेशेंट है, उसका हस्बैंड भी हमेशा उसके साथ आता है। वो किसी को भी बोल सकती थी कि आप मेरे फोन से एक मैसेज डालो कि मेरा डिलीवरी हो गया, लेकिन फिर भी इस लेडी ने जब जरूरत पड़ी तब मुझे मैसेज किया। और वो सॉरी भी, आई फेल्ट कि वो सॉरी उसने डिलीवरी के बारे में बोलने के लिए नहीं था, बिकॉज शी मैसेज मी लेट नाइट 11:15 11:30 बजे, इसके लिए आई फेल्ट कि उसका सॉरी था। उसका पूरा उसने जो कन्वर्सेशन भेजा था इतना बड़ा, उसमें कहीं भी मुझे वो फील नहीं हुआ कि ये सॉरी, शी इज फीलिंग सॉरी फॉर दैट कि नॉट इन्फॉर्मिंग मी, ऐसा। तो दिस इज अनग्रेटफुल। तो दिस इज पल्सेटिला। और जैसे दीपा मैडम बात कर रहे थे ना, तो मैं बोल रही थी कि पल्सेटिला को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हैंडल करना बहुत मुश्किल है। बाकी भी
मेरे एक दो पेशेंट को पल्सिटिला से कंसीव हुआ है, उनका भी मैंने देखा है, बहुत सेंसिटिव रहते हैं, थोड़ा सा भी कुछ होता है ना सहन नहीं कर पाते, नौशिया वॉमिटिंग तो इनको सहन ही नहीं होता, वो इतना परेशान करते हैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, डॉक्टर ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब कुछ भी थोड़ा भी तकलीफ हुई तो भी उन लोग तुरंत बोल देते मुझे ऐसा हो रहा है वैसे हो रहा है, मतलब सर से भी सीखा है हमने कि पल्सिटिला बहुत जैसे परेशान करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब इतना सेंसिटिव रहते हैं, बिल्कुल भी सहन करने की ताकत नहीं रहती उनमें। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। थैंक यू सो मच। किसी को कुछ डाउट्स है? मैम एक बार वो कार्सिनोसिन की रूब्रिक बता दें जो आपने बताई थी, अ, मतलब कि वो एंटीबायोटिक्स लेती है फिर भी उसको डाइजेस्ट नहीं होता, प्रॉब्लम होने लगती है। जनरलिटीज में आप जाओगे तो मेडिसिन डालने का, एलोपैथिक ओवर सेंसिटिव टू, आप रेपर्टरी में ओके। जाओ जनरलिटीज में, फिर मेडिसिन डालो, मेडिसिन के अंदर आपको आएगा एलोपैथिक का ऑप्शन, उसमें जाओ, फिर उसमें आपको आएगा अब्यूज टू, अब्यूज्ड और ओवर सेंसिटिव, इस तरीके से ऑप्शन आएंगे, फिर उसमें ओवर सेंसिटिव में आप जाओगे तो आई थिंक कुछ 11 या 18 रेमेडीज है। सो ये बहुत डायरेक्ट 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 रूब्रिक है। ठीक है, चलो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, ऑलरेडी 15 मिनट ज्यादा हो गया। दीपा मैडम आई तो नहीं। ओके, ओवर टू यू मंथी मैडम। Thank you for wonderful case of infertility. एक्चुअली जो टॉपिक था मैनेजमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी, ये मैनेजमेंट पार्ट ही आई थिंक इट वेरी डिफिकल्ट इन होम्योपैथी, क्योंकि मेडिसिन वी कैन कम टू मेडिसिन इन very short time, but to manage the patient afterwards it's very difficult. So thank you for wonderful case carcinosin after followed by pulsatilla. That was nice to learn. It was really nice to hear to you. Thank you. Thank you so much. Thank you, Liaquat sir. And thank you everyone for joining. Keep joining and keep learning. Thank you. Thank you. I especially want to thank sir, because of sir हम कार्सिनोसिन इतना अच्छे से पढ़े हैं और इनफर्टिलिटी केसेस ट्रीट करने में भी कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ सर के वजह से आया है, और मानसी मैडम और बाकी भी हमारे टीम मेंबर्स विल अग्री यहाँ पे कि सर ने जितना अच्छे से कार्सिनोसिन पढ़ाया है, आई डोंट थिंक अभी तक किसी से भी नहीं पढ़ा है और शायद नहीं भी पढ़ पाएंगे। तो आई अर्ज यू कि आप सर के कोर्सेज ज्वाइन करो और सर से पढ़ो, ये जो रेमेडीज है ये मतलब आप लिटरली आप फील करोगे वो रेमेडी को जब सर पढ़ाते हैं, तो आप वो इमोशंस और वो पूरा जेल हो जाओगे वो रेमेडी में, इतना अच्छे से लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ और बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ सर पढ़ाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो